So let's begin with the discussion of mock CAT 4 quant section. Let's start with the selection of question first. This is mock CAT 4, so hopefully again, okay, we are almost done with, I guess, this is the 12th test that we are discussing right now. इससे पहले we are already done with 11, out of which 8 are sectional mocks and remaining 3 are your FLTs. This is the 4th FLT that we are going to discuss. So for starting this, अभी just on a general note, मेरे हिसाब से on an average किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन काउंट शुड नॉट बी लेस देन 7. कम से कम 7 क्वेश्चन बेयर मिनिमम हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए. In case if it is not like that, please discuss it with me or Abhishek sir. But yes, please get the same done and get the same done early as possible. अगर quant section में आपका selection count is anything less than 7, that's a point of concern at this point of time. Ideally, it should be discussed. So, अगर किसी का भी less than 7 आ रहा है, please discuss so that we can help you out with the selection of questions. And if not, then it's good enough. And for those who are scoring consistently good enough, please try to raise the count of question as well as accuracy. Because particularly talking in terms of sections like quant and LRDI, we can even up to a limit can expect 100% accuracy. We cannot be sure of it, obviously, yes. But yes, up to a limit, we can expect 100% accuracy as well when I'm talking particularly in terms of quant and LRDI. So those who are working good enough and are getting good scores consistently, please be sure about your accuracy. Be sure that whatever you are attempting should be correct. 100% is quite difficult to achieve, but at least it should be crossing 70-75%. That's a decent target. Okay, so starting with it, with the bifurcation or with the selection of question number 1, put it in part 1. It's a question from time and बहुत basic सा question लग रहा है. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 2 escalators part 1 में डाल दीजिए. किया हुआ topic है. Question number 3 averages part 1 में डाल दीजिए. Question number 4 progression, but I guess you could have attempted it considering कि इस type का same एक question अभी class में discuss हुआ था when we were discussing the doubts of progression. So you could have attempted it part 1 में डाल दीजिए. Question number 5 could have skipped it for now. Number system से related कुछ लग रहा है. Going ahead, part 2 में 3 में डाल दीजिए because we haven't covered number system yet. Question number 6 geometry part 3 में डाल दीजिए. Question number 7 quadratic equation you could have skipped it for now. As of now एक बार skip कर सकते हैं. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 8 number system you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 9 this is something which sort of like its equation. Part 2 में डाल दीजिए. As of now question number 10 you could have skipped it for now. Number system से related लग रहा है. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 11 seems to be something like time, speed and distance. Ideally you could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 12 functions part 3 में डाल दीजिए. Question number 13th ratio part 1 में डाल दीजिए. Question number 14th SI से I guess you could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 15 times heights and distances you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 16 something from words and percentages. Ideally you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 17 टाइम स्पीड डिस्टेंस बट थोड़ा सा लेंथी लग रहा है. could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 18 लॉक किया हुआ है बट थोड़ा सा लेंथी लग रहा है. could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 19 यस तो 17th वाला लेंथी नहीं वो कर सकते अपन पार्ट 1 में चलेगा. विल सॉर्ट इट आउट लेटर बिकॉज मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो क्वेश्चन को देख के लगा मैंने उसको बताया. और हो सकता है अभी लॉग वाला भी इजी हो तो नो इश्यूज. डिस्कस सारे करेंगे बट एक बार मैं मेरा बताता हूँ. 19 मेरे हिसाब से एलिगेशन मिक्सचर अगेन यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 20 परसेंटेज से रिलेटेड आइडियली शुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 21 मेरे हिसाब से नंबर सिस्टम या फिर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ है. यू कुड हैव स्किप्ड इट फॉर नाउ. पार्ट 2 में डाल दीजिए. एंड क्वेश्चन नंबर 22 अगेन यू कुड हैव स्किप्ड इट फॉर नाउ बिकॉज़ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कुछ लग रहा है. पार्ट 2 में डाल दीजिए. चलो फाइन लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले कौन सा है? फर्स्ट बताने का है किसी को? एनीवन? नो सर. No, sir. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है. किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए एल्स विल गो अहेड विद द नेक्स्ट वन. नो सर. नो सर. 2 होपफुली किसी का भी नहीं है. गोइंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 2 बताने का है किसी को? यस सर. यस सर. क्या बात है. तो एलिगेशन अपना एस्केलेटर्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन. अच्छा एनीवन वुड लाइक टू आंसर? एनीवन जवाब दे पाएगा?
बोलो, पूछो तो सही क्या है। ए भाई, कोई यस नो में जवाब देगा? यस सर। यस। अच्छा एक बात बताइए, एस्केलेटर स्टार्ट करवाया था, एस्केलेटर का टॉपिक करवाया था मैंने, एक बेसिक हम्म। चीज बताई थी, याद है आपको? हाँ, एक की स्पीड अपन लोग अज्यूम हाँ। कर लेंगे। एक की स्पीड अज्यूम कर लेंगे, और दूसरा मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से एक मैन की बात हो रही है, एक विमेन की बात हो रही है, दो विमेन की, आई गेस एक ही। सिंगल विमेन इज देयर। तो हाँ। यस, विमेन की स्पीड क्या ले लूं, 1 step per second। और एस्केलेटर की? X step per second। और ये बोला था हमेशा नंबर ऑफ स्टेप इक्वेट करने का, दैट्स इट, बराबर? हम्म इतना याद है तो यू शुड हैव सॉल्व्ड इट। देखने का है, वुमेन कैन वॉक अप मूविंग डाउन एस्केलेटर एंड वुमेन इज वॉकिंग अप इन हम्म 120 सेकंड्स। 120 सेकंड्स के लिए 120 सेकंड्स में वुमेन ने कितना स्टेप लिया होगा? 120। माइनस, क्योंकि वो अप जा रही थी, एस्केलेटर डाउन जा रहा था। हाँ। 120x एस्केलेटर का। यस हम्म। सर। The same women can walk down this moving down escalator in 40 seconds. अगर दोनों डाउन जाएंगे तो 40 + 40x। so I'll have 160x equal to 80, x equal to 1 by 2. यस सर। Assuming that her walking speed is same, how much time will she take to walk up escalator when it is not moving? Total number of steps में x को इधर 1 by 2 पुट कर दो मैम, कितना आएगा? 60। 60। और एक की स्पीड से कितना सेकंड लेगी? 60। क्या डाउट पूछते हो तुम लोग यार? तो डिस्टेंस को भी अज्यूम कर सकते हैं ना, जैसे 240 ले लिया। यस मैम, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सर। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो मैं क्या समझाता हूँ, मेरे हिसाब से मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। मेरे हिसाब से अगर चीजों को यूनिफॉर्म रखेंगे ना, तो अपने को दिमाग कब लगाना पड़ेगा। व्हाट आई टोल्ड यू इज कि अगर आप एक बंदे का एस्केलेटर का, मैंने बोला हमेशा एक्स ले लेने का है, एक बंदे का दे रखा है, अज्यूम कर लो। एक से ज्यादा बंदे का दे रखा होगा तो उनमें रिलेशन दे रखा होगा कि दो बंदे हैं ए और बी, उनका रेशियो है 3:5, तो 3:5 ले लो। अगर इन चीजों को यूनिफॉर्म रखोगे थ्रू आउट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एस्केलेटर, इट विल बी इजियर फॉर यू। अगर हर नए क्वेश्चन में मैं नया अप्रोच लगाने की सोचूंगा, इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट फॉर मी टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। सो गॉट इट। सो मेरे सो हिसाब से हमेशा यूनिफॉर्म वन रखो। वन लेना हमेशा है। हमेशा वन नहीं लेना मैम, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि लेट्स अज्यूम ए एंड बी आर वॉकिंग अप on a moving down escalator and the speed ratio of A and B is 3:5. So I'll assume 3 steps per second for A and 5 steps per second for B. Depending upon the information and the situation given to in the question, you have to assume. If not given anything, then you can take it to be 1 step per second. गॉट इट, गॉट इट। Right? Shall we go ahead with the next one? यस तो सर। एक क्वेश्चन। Sorry, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ जी। Yes, ma'am. सर आपने ये जो इक्वेशन बनाई थी इसमें आपने 120 - 120x लिया है, तो Yes, इसकी ma'am. जगह पे अगर 120x - 120 लेंगे तो उसमें क्या मिस्टेक होगी? उसमें मिस्टेक हुई। देखो दो चीजें मैं समझा देता हूँ। एक तो विमेन कैन वॉक अप, मतलब वो अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है। हाँ। वो अपने डेस्टिनेशन पे तभी पहुंचेगी जब उसकी स्पीड एस्केलेटर से ज्यादा होगी, हाँ। बराबर? सो यू कैन नॉट हाँ टेक जी। इट टू बी 120x - 120। 120x - 120 इंडिकेट्स कि एस्केलेटर का स्पीड ज्यादा है विमेन से। अंडरस्टूड सर। दूसरी बात, मेक इट बाय डिफॉल्ट अ रूल कि कभी भी मैन या विमेन का स्पीड एस्केलेटर से कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बेवकूफी लगेगी कि आप एस्केलेटर पे वॉक कर रहे हो ऊपर की तरफ, एस्केलेटर नीचे आ रहा था और एस्केलेटर ने आपको नीचे पहुंचा दिया। ऐसा प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं रहेगा कभी। यू आर वॉकिंग अगेंस्ट द एस्केलेटर जस्ट विद अ सिंगल मोटिव कि आपको ऊपर पहुंचना है। सो बाय डिफॉल्ट इट इज अज्यूम्ड कि विमेन या मैन का स्पीड हमेशा मोर देन एस्केलेटर है, कभी भी लेस देन एस्केलेटर नहीं हो। ओके सर। Shall I go ahead? हाँ जी। यस सर। Shall I remove this? यस सर। Fine. Yes, Going sir. ahead. Please next. थर्ड। Anyone having a doubt? नो सर। किसी का है तो पूछ लीजिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. सर। चलो बता देते हैं यार। देखो मैंने, ट्रस्ट मी एंड प्लीज ट्रस्ट मी फॉर दिस, मैं जो बोल रहा हूँ ना कि यार वैल्यू पुट करके निकाल दिया करो,
ये चीजें एक्चुअली वर्क करती है। मैं ऐसा नहीं है कि मेरी शीट जल्दी कंप्लीट कराना है, डाउट्स नहीं बताना है, इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ यार इसको तो पुट करके निकाल लो। इन चीजों को जब एग्जाम में अप्लाई करोगे, you'll get the benefit of the same. आइडियली ये 24 सेकंड्स में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है। ट्रस्ट मी, आई कुड हैव सॉल्व्ड इट इन 24 सेकंड्स अगर मैंने वैल्यूज को अज्यूम किया होता। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल फॉर दिस, बिकॉज गलती से अगर कोई बच्चा इसका सोल्यूशन दे रखा है क्या नीचे, ये तो लगा सर, कुछ देखता नहीं। मेरे को भी नहीं दिखेगा। नहीं, आपको तो सब कुछ दिखेगा सर। हाँ, FLT का सोल्यूशन होता है। ए भाई मैं एडमिन हूँ यार। अब देखो मेरी बात सुनो, ये गंदा सा इतना लंबा सा सोल्यूशन पढ़ के कोई भी इच्छा, किसी की भी इच्छा नहीं होगी कि इस क्वेश्चन को करे। सो आइडियली व्हाट आई कुड हैव डन इन अ केस लाइक दिस, मैं वो बता देता हूँ। इन अ सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले रहा हूँ, मतलब 1 2 3 4 5, क्लियर है? ऑड नंबर। हाँ Odd, odd, यही मैं सुनना odd चाहता था, सुन numbers. तो रहे हो ना। ऑड नंबर्स लेने का है। आई टेक इट टू बी 1 1, 3 3, 5 5, 7 7. 9 11, यहाँ तक ले लो बहुत है। यस सर। हाँ सर। सेट ऑफ consecutive odd numbers, the average of first n numbers, n कितना लेना चाहते हो जो अपनी इच्छा है बोल दो। अब ऐसे 20-25 मत बोलना, देखो कॉम्प्लिकेटेड आप 2, खुद के लिए कर, फोर खुद कर। फोर 2. फोर ले फोर लो, ले लो। चलो ले लिया फोर, आपकी इच्छा पूरी होगी। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 8। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 4 आ रहा है। 4. चार आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं. No, sir. नो सर। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट m नंबर्स वेयर m इज ग्रेटर देन n, कितना लूं? 6. 5. 6 ले लो मैम। उसका रीजन समझा देता हूँ। यहाँ पे आगे जाके n+1 से m तक जाना है, तो 5 से 5 तक जाओगे अच्छा नहीं लगेगा, आंसर उससे भी आएगा। बट 6 ले लो, कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो आपको। नो No problem. ठीक है। द एवरेज ऑफ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ओके, जस्ट अलाउ मी 1 मिनट प्लीज। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n m numbers where m is 6 is b। एवरेज कितना है फर्स्ट 6 नंबर्स का? 6. 6. यहां तक किसी को दिक्कत हुई? नहीं. If the sum of first m numbers, sum of first 6 numbers, एक सेकंड दीजिए प्लीज, सो सॉरी। ओके फाइन, यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। No, sir. नो The sum of first 6 numbers is s। पहले 6 नंबर का सम निकाल के बताएगा कोई? s का वैल्यू क्या आ रहा है? 36. 36. कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं, सब कुछ निकाल दिया। द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम n+1 to m, 4+1, 5 to 6, ये 5 से 6 तक जो ऑड नंबर्स, इनका एवरेज कितना आएगा? आंसर बताइए कितना आना चाहिए आपके हिसाब से। 10. 10 आ गया सर। ये यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। मैंने जो मेरी इच्छा कर रही थी मैंने वैल्यू अज्यूम की अभी तक। कोई दिक्कत? No, No, sir. नो No, सर। sir. कैन वी गो अहेड? यस सर। आपको आंसर चाहिए 10 इन टर्म्स ऑफ एबीएस। ठीक है, सबसे पहले a+b/2 जल्दी से करके बताइए। ये रहा a, ये रहा b, a+b/2 कितना आ रहा है? 5. 5 दूसरा s अपॉन a+b, ये रहा s, ये अपॉन a प्लस b, जल्दी से करके बताइए कितना आ रहा है? 15. गलत। 15. तीसरा s अपॉन b प्लस a, s अपॉन b प्लस a कितना आ रहा है? 10. 10. 10। समझ रहे हैं? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इतना इजी क्वेश्चन था। अगर आपकी जो इच्छा है रैंडम वैल्यूज अज्यूम करो। इंटरेस्ट में इसके एक बार सोल्यूशन खोल के देख लेना, इच्छा खत्म हो जाएगी क्वेश्चन करने की। सो प्लीज इन केस इफ आई एम सेइंग कि ऑप्शन से हो सकता है, इसको वैल्यू अज्यूम करके कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, तो इन चीजों को अप्लाई करो। ये एक्चुअली आपको एग्जाम में जाके हेल्प करती हैं। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि यार टाइम बच जाए इसलिए, या फिर ना बताना पड़े इसलिए जल्दी से बता के निकल जाऊँ। ये चीजें आप अगर एग्जाम में अप्लाई करोगे, दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। Hopefully you'll Okay, understand sir. this thing. Let's go ahead. Shall I remove this? Yes, Yes, यस sir. सर। Going ahead with the next one. Next question. 4 बताने का है किसी को?
Yes, sir. Yes, sir. चलो, we'll figure it out. हाँ, along a road, an odd number of stones are placed at an interval of 15 मीटर. ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और सब 15-15 मीटर के गैप में है, ठीक है? सर Yes, ऑड sir. नंबर ऑफ स्टोन्स मतलब या तो 7 स्टोन है, या 10, 11 है, या 15 है, या 19 है, या 17 है, 18 नहीं हो सकते. ठीक है, ओके. मैं 2n+1 या 2n-1 ले लूं क्या? 2n+1 ले लूं क्या? हाँ, The stones are to be assembled around the middle. यार देखो, 2n+1 का मतलब होता है मिडिल स्टोन क्या होगा? n+1th स्टोन होगा ये. जिसके लेफ्ट में भी n स्टोन है, जिसके राइट में भी n स्टोन है. हाँ या ना? तभी तो 2n+1 बना. एक स्टोन ये है. यहाँ तक कोई हाँ, दिक्कत नहीं. 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 चले आगे. हम्म. A person can carry only one stone at a सर time. ये n+1 क्यों लिया? इसकी बात कर रहे हो? हाँ हटा दो. अब सही है. हाँ एक स्टोन ये खुद है. n लेफ्ट में, n राइट में. 2n+1 हो गया ऐड करके. n+n 2n और एक के बाद हाँ. यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे. यस सर. मैन स्टार्टेड फ्रॉम द स्टोन इन द मिडल. यहाँ से बंदा स्टार्ट होता है. कैरिंग स्टोन इन सक्सेशन thereby covering a distance of 11.4 किलोमीटर. The number of stones is. वो यहाँ से पहले स्टोन पे गया, कितना चला? 15 meter. 15 meter. 15. और फिर वापस आके यहाँ पे स्टोन को रख दिया, कितना चला? 15. Sir, Total? 30. 30. फिर दूसरे स्टोन पे गया, कितना चला? 30. 30 वापस कितना आया? 30. 30 मतलब total 60 कितना हो गया? टोटल. 60. ठीक है. पहला स्टोन रखने में 30 किलोमीटर चलना पड़ा. दूसरे में, 60. तीसरे में, 90. 90. एंड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. हम्म. यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए. No, sir. सर मैंने केवल लेफ्ट का निकाला. राइट का भी निकालना है, इंटू 2 कर दूं. Yes, हम्म. sir. यस सर. ये एन टर्म्स तक जाए. टोटल है 11,400 मीटर. क्योंकि ये 15 मीटर में था और ये किलोमीटर में था, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया. कोई दिक्कत? No, sir. चले आगे. यस सर. Yes, sir. काट दो. 5700 है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 30 और कॉमन ले लो इसमें से. क्या हम्म. बचेगा? 1 2 3 1 4. plus 2 2n 3 क्या plus होता है? 4. हाँ. n into n plus N into 1 n by plus 1 by 2. 5700. ये कितने में गया? 380 आएगा. 80. n इंटू n+1 कितना हो गया? 380. 380. दो नंबर्स का प्रोडक्ट 380 कब होता है? 20 और 19. बैठेगा या फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करूं? बैठ सर जाएगा. हो जाएगा. Yes, किसी को sir. सॉल्व करना है तो बोल दो. बैठ जाएगा सर. हो जाएगा सर. चलो, बढ़िया. बैठा लेंगे. नहीं, बिठाने इतना सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो? सॉल्व कर लो बैठ के. क्वाड्रेटिक आता तो है ही ना तुमको. सॉल्व करो. फिर भी ये आगे. टोटल कितने स्टोन्स थे आपके पास? 2n plus 1. 2 n plus को 1. 19 पुट करो, आंसर कितना आएगा? 39. ये करेक्ट आंसर. कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए. नो सर. No, sir. ठीक है. जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड. Is it done? Shall I remove this? Yes, Yes, sir. sir. सर ये फर्स्ट कैटेगरी में थोड़ी ना लिखवाया था आपने. मैम फर्स्ट में लिखवाया था क्योंकि ये सेम क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन अपनी शीट में था. और तब मुझे वेल एंड ट्रीज. हाँ. कौन सा ट्रीज वाला? हाँ. ट्रीज और वेल. हाँ. जिस बच्चे को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मीटिंग में है क्या? हाँ, ये रहा. प्रतीक ने मुझे याद दिलाया था कि ये सीबीएसई की 10th बोर्ड एग्जाम, 10th की एनसीईआरटी में है. ये क्वेश्चन. हाँ. ओ. तो फिर इतना तो ये deserve वाला कर. नहीं था. अरे लगभग ऐसा ही भाई. ये रहा, हो सकता है ही तो.
Yes. 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 देखो एनी डे द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपका 100% सिलेक्शन मेरे 100% सिलेक्शन से मैच नहीं कर सकता कभी। और दूसरी बात, मेरा सिलेक्शन भी बहुत बार गलत हो जाता है। जैसे इन केस इफ यू रिमेंबर, शायद लास्ट सेक्शनल टेस्ट के डिस्कशन में मेरा सिलेक्शन गलत हुआ था। वी सिलेक्टेड 2 क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट सपोज्ड टू बी सॉल्व्ड, बट वी डिड दैट। अभी जैसे इसमें हुआ, भव्य ने एक बताया कि वो वाला इजी क्वेश्चन है, और हो सकता है व्हेन वी विल सॉल्व दैट वी विल फाइंड आउट टू बी एन इजियर वन, बट मुझे फर्स्ट परसेप्शन में नहीं लगा। तो वो चीज है, तो कई बार वेरी करता है, नो इशू, राइट? शैल वी गो अहेड? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज। 11. बताने का है किसी को? Yes, sir. Garfield started from P towards Q at 3 a.m. Tom started from Q towards P at 8 a.m. यहां से गारफील्ड स्टार्ट करता है P से Q की तरफ 3 पे, टॉम स्टार्ट करता है 8 a.m. पे। They meet at 12 noon and later reach their destination simultaneously at... Yeah, just tell me one thing, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी, इसका डाउट किसी ने यस बोला था इस क्वेश्चन के लिए। Yes, sir. मैम शॉर्ट ट्रिक याद है आपको? सर स्पीड की Sir, और हाँ। V1 upon की रेशियो थी ना? V2, Root TATV. V1 Yeah. upon V2 equals to under root T2 upon T1. बराबर लगा Root सकते हैं? TATV, हाँ. Yes, sir. नहीं लगा सकते हाँ, क्योंकि मैंने लगाया था, आंसर निकला था मेरा। मैम। उसमें कंडीशन भी होती है। कंडीशन ये थी कि बोथ ऑफ देम शुड स्टार्ट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, ओके सर। याद है? हाँ जी, हाँ जी। सर ये मैंने रूट TATV से की थी. मैडम अभी मैं पूरे बोल देता हूँ एक बार। हाँ. तो लॉजिकली नहीं लगा सकते है ना, लेकिन हम्म. उसी शॉर्ट ट्रिक को उल्टा कर दोगे ना तो लग जाएगी। भी समझ में आया? नहीं सर। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि सेम टाइम पे दोनों निकलेंगे, मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिले, उसके बाद इसको टाइम लग रहा है TA, इसको टाइम लग रहा है TB, तो टाइम ऑफ मीटिंग था रूट TATB। हाँ. यस सर। यही था। मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये निकला 3 बजे, ये निकला 8 बजे, दोनों मिले 12 बजे, यहाँ पे मान लेते हैं 12 बज गए। ये बंदा अभी तक 9 घंटे चल चुका है, ये घंटा अभी तक 4 घंटे चल चुका है, ठीक है? इसके बाद दे रीच देयर रिस्पेक्टिव एंड पॉइंट्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम साइमल्टेनियसली। समझ गए? तो उल्टा करके लगा दो। हाँ. तो रूट 9 into 4 6, 6। लेकिन ये 6 घंटे मीटिंग के बाद उनको लगेंगे टू रीच देयर रिस्पेक्टिव एंड पॉइंट्स। सो 12 हाँ, बजे मतलब 12 के बाद 6 6. हाँ. बजे वो अपने एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे। क्लियर है? यस सर. हम समझ में आ गया अप्लाई कैसे किया है शॉर्ट ट्रिक को उल्टा करके? यस सर। चलो shall we go ahead with the next one? यस सर। Yes, sir. मतलब बाय डिफॉल्ट वैसे चेंज तो कुछ भी नहीं आया, सॉरी। ये कंडीशन लगाना, हाँ बट आंसर तो सर है ना वैसे भी। मैम आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे अच्छा बिफोर दैट लाइक मैम आपने बोला कि आपने शॉर्ट ट्रिक लगाई थी बट स्टिल यू गॉट अ रॉन्ग आंसर। यस सर। मैम क्या गलती की थी? हाँ नहीं सर, अब तो याद ही नहीं आ रही। अरे यार क्या है देने का, छोड़ने का। तो सुनिए मैम कनन, आंसर अभी अगर इसमें ही मैं इतना सा कर देता कि ये बंदा जो P है ना, ये गारफील्ड है, ये 1 घंटा लेट पहुंच रहा है टॉम से और निकले भी अलग अलग टाइम पे थे, शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल है क्या? नहीं। नहीं नहीं है, लेकिन आप तो लगाए थे ना, इसलिए क्लैरिटी होना जरूरी है। राइट सर एक्चुअली मैंने तो फॉर्मूला दूसरा लगाया था, जो आप ओके दूसरा स्पीड के जो रेशियो के का बताया था, मैंने वो वाला अप्लाई किया था। मैम देखिए आप थोड़ा सा सोच के देखिए, आपको किसी की भी स्पीड दे रखी है? नहीं। आपको किसी की स्पीड पूछी है? नहीं।
आपको स्पीड से कोई मतलब है? नहीं। तो फिर क्यों लगा रहे हो मैडम? इसी हाँ शॉर्ट सर, ट्रिक में सॉरी 2 सर। फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, एक नहीं लिखवाया था, ढंग से याद कीजिए। हाँ हाँ, नहीं, ये वाला भी याद है बस। हाँ। समझ गए? जो चीज दे रखी है थोड़ा सा रेलेवेंस देखिए हाँ ना, जी, वो चीज रेलेवेंट है या नहीं। अंडरस्टूड सर। Shall I remove this? Yes, sir. Sure. Going ahead. Next, 13. after 11, sorry, 13. 13. Do we need to discuss this? किसी को पूछने का है? No. यस सर। किसी ने तो यस बोला प्लीज। किसने? सर मुझे पूछना है। दिया वो, ओके मैम देख लेते हैं। m प्लस p प्लस r, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज 4 बच्चे तो सुबह से ही पूछ चुके हैं मेरे से। हाँ मिंकू टिंकू पिंकू रिंकू टोटल कॉन्ट्रीब्यूट 360, मतलब तीनों का ये, यहाँ तो कोई दिक्कत है। हाँ मिंकू contributes 1/5 of what other did, t plus p plus r, हाँ या ना? हाँ हाँ तो मैडम टीपीआर की वैल्यू बता देंगे प्लीज? 5M। तो मैडम इनको हटा के 5m डाल दूं हाँ तो तो 6m M 360। 60। हाँ चलो आगे चलते हैं। टिंकू contributes 1/4 of what other did, कोई दिक्कत? नहीं, तो एमपीआर की वैल्यू? MPR की 70। मैडम टू 40, 7 कहां से आ गया? मतलब 40 उसकी और 4t और 1t, 5t इक्वल टू 360, t इक्वल टू 72, हाँ या 22। ना? हाँ 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 हाँ। टिंकू contributes 1/3 of what other did, एमटीआर। मैडम एमटीआर का वैल्यू बता देंगे? 3P। एमटीआर को हटा के 3p और p, 4p इक्वल टू 360, p इक्वल टू 90। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 150, 222, 360 में से कितना बचा चौथे वाले का? 130। अच्छा क्लियर ओके। है मैम? यस यस मैम। सर, एक चीज मैंने इसके अंदर 60x ले लिया था टोटल, और फिर हाँ, M को दिया था, M12 ले रहा है, ऐसा कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं मैम। सर मेरा तो गलत हो गया था। M12 ले रहा था, T15 P20 R13। मैम M12 नहीं आएगा, 10 आएगा, बस दिक्कत इतनी सी है। 1/5 क्यों सर? 1/5 1/5 तो है ना? मैम सुनिए सुनिए, 1/5 तो वो टीपीआर का है, एम टीपीआर का तो 1/6 होगा। एक बार वापस सर। ये इक्वेशन देखिए आप, हम्म। तो आप बोल रहे हैं एम है 1/5 टीपीआर का बराबर, हाँ और टीपीआर 60 नहीं है, एम टीपीआर 60 है। ओके इधर से राइट। निकालोगे तो टीपीआर इक्वल टू 5m, और एक m को खुद था 6m इक्वल टू हाँ 60, तो m इक्वल टू 10 आएगा। ओके गॉट इट, समझ ठीक में आ है गया सर। मिस्टेक? और सर बाकियों का भी फिर ऐसे ही निकलेगा, यही मतलब ये गलती है वैल्यू बाकी की। है ना? ओके सर। चल यू गो अहेड, यस यस सर। सर। नेक्स्ट प्लीज। 14. बताने का है किसी को? No. Yes, sir. बताने है? टू बी ऑनेस्ट, मैंने केवल ऐसा ऐसे ही देख के क्वेश्चन छोड़ा देखा था, बाकी लॉजिकली मैं इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करता। देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन 4 लाइन का है, ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत अजीब से है, तो आइडियली मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता, बस मैंने देख लिया कि ऐसा ऐसे ही है तो हम लोग करते हो, इसलिए मैं सेलेक्ट कर लिया था, सॉरी फॉर दैट। अभी डिस्कस करते हैं। Mr. Sharma invests a certain amount of money in 4 different banks ABCD. The rate of interest of bank A is 5% per annum, and B is 7%, C is 9%, D is 11%. After 2 years, he received a total interest of 18,000. The amount of money invested in bank A is 1/3 the amount of invested in bank B. अच्छा, amount invested in C is half amount invested in bank B. D is 3/4. एक काम करो, बी में 6x रुपीज डिपॉजिट करा दो, तो ए में इसका 1/3 देना है, कितना हो गया? 2x.
बी में 3/4 यार एक काम करो 12x कर दो, थोड़ा और इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। सर 120x ले लें क्या, क्योंकि मैंने 120 लिया था, 2-3 बार किया, गलत हो गया। 12 पे हो जाएगा मैडम, इतना कर दो। 120x से आ रहा है आंसर, सही आ गया मेरा एक बार में। मैडम मेरे हिसाब से 12 से भी हो जाएगा, एक बार करके देख लेते हैं, नहीं तो 120 ले लेंगे, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। चलेगा यहाँ तो 4x। 4x। सी का था हाफ ऑफ बी 6x। और डी का था 3/4 ऑफ सी। 120 बेटर था रे एडिशनल वाला। सर अभी तो हो जाएगा, इसके को बाद 24 लेंगे तो हो जाएगा। सर एक्चुअली या तो, हाँ सर एक बार रहने दीजिए वाला क्वेश्चन, मैं आपको सोल्यूशन कल दिखा दूंगी, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, और किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई? एक बार ऑप्शन से बता दो कैसे करेंगे। यार जब मैं इतना अज्यूम कर चुका हूँ तो मेरे हिसाब से मैं ऑप्शन पे जाऊंगा नहीं वैसे प्रैक्टिकली। इसके आगे करके दिखाना है तो मैं नहीं, करके क्योंकि सर दिखाऊंगा। नहीं हटा दूं? सर, चले ऑप्शन से कर तो सकते हैं, बस लेंदी जाएगा। ऑप्शन कितना कैलकुलेटिव ऑलरेडी है, मतलब अपने हाथ में कैलकुलेटर भी वो नहीं, स्क्रीन वाला है, ये तो टाइप करने में ही टाइम लग ये और जाएगा। सबसे मेन सर चक्कर अप्रॉक्स पड़ेगा, वैल्यूज लेके हो। जब तक एबीसीडी का रेशियो नहीं पता ना ऑप्शन सॉल्व करने में पर बहुत सर कॉम्प्लिकेट। इसकी कैलकुलेशन हो रही थी विदाउट कैलकुलेटर। यस मैम हो जाएगी, ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यार लॉजिकली सोच लिया करो ना भाई, ए को 5% पर एनम का इंटरेस्ट देने का और 2 साल लगाने का, 10% मिल गया। हाँ है ना? अबे, आप ये नहीं बोलते हो। Am I audible properly? Sorry. Is it like that my voice is breaking? Yes, sir. नो सर। मेरा वॉइस ब्रेक No, हो रहा है sir. क्या? नहीं नहीं। नो Yes, सर। sir. परफेक्ट, ठीक है। सो यस, अगर 5% के हिसाब से ए को लगाया, ए का वैल्यू लगाया और 2 साल के लिए लगाया तो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। Yes, डायरेक्टली sir. वुड हैव टेकन 10% ऑफ 4x 0.4x। अब आपने इसको अगर वही किया होता 120 लिया होता तो ये 120 होता, ये 40 होता, ये 60 होता और ये 45 होता, और ज्यादा इजी हो जाता, 4x का इंटरेस्ट आता। सिमिलरली कुड हैव कैलकुलेटेड फॉर बी, फॉर सी, फॉर डी, कुड हैव इक्वेटेड इट टू 18,000, कुड हैव गॉट द आंसर इजी। हो जाता। यस सर। करके बताना तो यस बोल सर। दो, आगे चलेंगे। Sir, एक क्वेश्चन था। यस मैम प्लीज। सर यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप सिंपल इंटरेस्ट एज्यूम करेंगे ना? बाय डिफॉल्ट हमेशा यस। ठीक है सर। और सर इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय डिफॉल्ट हमेशा ऐसे ही। ओके। बता दूं? यस Yes. सर। नेक्स्ट 16 बताने का है किसी को? यस सर। Yes, sir. In MLA election, Mr. Tora filed the form from two constituencies, Golconda and Rolconda. The number of votes not cast for him at Rolconda was greater by 20% than that at Golconda. He lost at Rolconda by twice as many votes as he did as the number of votes by which he won at Golconda. If total 320 people voted at each of the constituency, ये गोलकुंडा है, 3,20,000 लोगों ने उसको वोट टोटल वोट किया। ये रोलकुंडा है, 3,20,000 लोगों ने टोटल वोट किया। Those who voted against him 100x. Those who voted against him, अब ये लाइन रीड कीजिए, the number of vote not cast for him at Rolkunda was greater by 20% than that at Rolkunda. मतलब 120. 120x। Those who voted for him 320 minus 100x। 3,20,000 minus 100x. Minus 100x. 3,20,000 minus 120x। he lost at Rolkunda. Rolkunda पे हारा कितने से होगा? जो उसके अगेंस्ट है माइनस जो उसके फेवर में थे, इतने वोट से वो हारा होगा।
कोई दिक्कत है तो बोल दो। Yes, sir. दिक्कत है? No, sir. By twice as many No, votes sir. by which he won at Golconda. वो गोलकुंडा पे जीता कितने से होगा? -100x 320 100x minus -100 100x. सॉल्व कर लेंगे, करके बताऊं? हो जाएगा। No, sir. सर हमने यहाँ 2 बार क्यों किया 100x माइनस 100x, क्योंकि 1 तो 320 माइनस 100x है ना, मैम इतने वोट उसको मिले, राइट? इतने अगेंस्ट थे, अच्छा ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, वो आपको मैं 50 वोट मिले और ओके 40 लोग आपके अगेंस्ट थे, तो आप कितने वोट से जीते? 10। समझ में आ गया? आ गया क्या? हाँ सर बोला ना, यस आ गया आ गया। क्या मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है? मेरा शायद नेटवर्क इशू। गोइंग अहेड। Shall I remove this? 19. Yes, sir. Yes, sir. Next question. 19. बताने का है? Yes, sir. No, sir. No, sir. किसी ने तो पूछा बताना था। सर। मैंने सर ये ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं क्या? I don't know. We'll just check it out. A merchant has 6 barrels with capacity 15, 16, 18, 19, 20, 31. One barrel contains wine, the other 5 contains oil. He keeps the barrel of wine for himself and sells the oil in integral liters to 2 men in the ratio 1:2. Find the capacity of barrel containing wine. बढ़िया विजन। किसी का आंसर आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बढ़िया Yes. था। हाँ, केवल देख के कैसे बता सकते हैं आंसर? Some multiple of 3. 3 का मल्टीपल हाँ सर। नहीं होगा नहीं होगा 3। और 25 नहीं मतलब ऊपर 3 का था, इसमें तो मल्टीपल नहीं 25 होना कैसे हो चाहिए जाएगा? ऐसा। हाँ तो मैडम 25 भी तो नहीं है। तो सर वो तो ऊपर सर था, 25 इसमें है वैसे नहीं भी ना नहीं option है में। सर है ही नहीं, दिया हुआ ही नहीं है 25। लीटर्स में नहीं है। अरे ऑप्शन में है ना 20। अच्छा ऊपर 25 सर नहीं है, so ऊपर कैपेसिटीज है में ही नहीं ना नहीं पर सर। नहीं है सर। समझ गया। और यहाँ पे अगर मैं इसको 16 कर दूं तो तो सर फिर छोड़ दो क्वेश्चन। तुम तो सर छोड़ सकते हो ना फिर कि एक एक गलत वैल्यू हो। लेकर एडिशन करके देखना पड़ेगा कि 3 का मल्टीपल बेटर है क्या, उसको हटा के वैल्यू को हटा के। मैं मेरा तरीका बता देता हूँ, आप लोग सही हो लेकिन मैं मेरा तरीका बता देता हूँ। आई वॉज लुकिंग फॉर ऑड वन आउट। 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल +1, 3 का मल्टीपल +1, 3 का मल्टीपल +1, 3 का मल्टीपल +2। सर ये मतलब ऐसे जुगाड़ से ही होगा क्या? हाँ सर, होगा तो जुगाड़ से। मेरा जुगाड़ मतलब हो, बट होगा जुगाड़ से। पूरा मेथड जो आपको चाहिए ना वो फिर मैं आपने समझा ऑड वन क्यों निकाला? बता देते हैं मैम, उसका रीजन भी दे देते हैं। देखो पहले वरुण आपको पूरा मेथड समझा देते हैं। 15, 16 एक बार इन सारी वैल्यूज को ऐड करके बताओ। 119. 119. 119 में से एक बैरल उसने खुद के लिए रख लिया और जो बचा वो 3 का मल्टीपल था। ये समझ में आ गया? क्योंकि उसको 1:2 में डिवाइड किया है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करके देखो। 119 - 15 104 3 का मल्टीपल है क्या? नहीं No, sir. नहीं है। -16 105 3 का मल्टीपल है क्या? यस Yes, sir. सॉरी 103 क्या है सर? सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं नहीं आता। सर नहीं। -18 101 है क्या? नहीं है। सर नहीं -19 100 नहीं है। नहीं है। -20 99 है. है। -31 78
नहीं है Yes, 78 है वो तो है कैलकुलेशन एरर रहा होगा, 78 नहीं होगा, 88 होगा। 88 है सर। यार मेरे को देखो प्लस माइनस नहीं आता, मैं इसलिए तो बार बार क्लास में बोलता हूँ कि कर लिया करो, मेरे को नहीं आता है भाई ये सब। 88 नहीं है ना, तो 20 का नहीं। आंसर आ गया वरुण। आज समझ गया सर। चलो ये तो हो गया। और किसी ने कुछ पूछा था मेरे हिसाब से, आई गेस कनन ने कुछ पूछा था यस सर, ये ऑड वन आपने क्यों कि मतलब ऑड वन आउट क्या? क्यों किया। मैम देखो मेरे को दो चीजें समझ में आई। अगर मेरे को 119 तक भी नहीं पहुंचना था तो मैंने को लगाया। अगर आप सपोज करो 119 तक पहुंच गए, आपको इसमें 3 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बच रहा है? 119 को किससे? 2 3 से? डिवाइड बाय 3। 2 बैठ रहा है 2 रिमाइंडर तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 2 रिमाइंडर हो, वो इसमें से हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। इनमें से केवल 22 रिमाइंडर दे रहा है, ये भी समझ में आ गया। एक और अप्रोच, यस सर। तीसरी जो मेरा जुगाड़ था कि ऑड वन आउट किया, उसका लॉजिक समझा देता हूं। अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 16, तो कितना बच रहा है? सो 103। मैडम इसका रिमाइंडर बता दो। 1 अगर इसमें से आप यस सब्ट्रैक्ट सर। कर रहे हो 19, तो कितना बच रहा है? 1 1 अगर इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करो 31, तो कितना बच रहा है? 1 गेटिंग इट? जो सेम रिमाइंडर्स वाले थे ना, वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे आगे जाके भी। जो एक ही ऑड वन आउट था 20, जो 2 रिमाइंडर दे रहा था और बाकी सब नहीं दे रहे थे, वो ही एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आगे जाके। अगर आपका ओके। सिचुएशन 16 पे सेटिस्फाई हो रहा होता ना, तो 19 पे भी होता, तो 31 पे भी होता, तो फिर तो बैठ ही नहीं पाएगा ना। ठीक है सर। चलो गोइंग अहेड प्लीज, नेक्स्ट वन। 20। बताने का है किसी को? यस सर। क्वेश्चन तो आने दो। हाँ, बताने का है किसी को? यस सर यस सर। यस कैसे सर। बेवकूफ लोग हो तुम तो। ये कैसे गलत हो गया? ये कैसे गलत हो गया? क्योंकि सही नहीं हुआ नहीं इसलिए सर गलत है। सर अब सर आ गया याद आ गया अब पूछो ये कैसे करोगे? तो वो भी याद आ गया। मैडम बोला है पूछो कैसे करोगे। सर कैसे करेंगे? अरे दिया है क्या मीटिंग में? दिया? अरे मीटिंग में तो है, फिर ये क्या करोगे? सो गई? दिया है ना? तो आवाज क्यों नहीं आ रही? सो गई क्या? जाने दो, चलो बता दो चला कौन कौन सी थी। A pet merchant started his business at the end of 2008 by buying 9 score. 9 score क्या होता है? 20 into 9 180 180। Score means 20. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। Every year he added m% at the beginning, sold n% at the end. Both m and n are more than 0. वापस से 2012 में उसके पास सेम वैल्यू। यार एक बात बताओ, अगर 2008 के स्टार्टिंग पे जो वैल्यू थी, उसमें प्लस m% किया, माइनस n% किया, 2009 वाली वैल्यू अगर 2008 लेट्स अज्यूम यहाँ पे 100 थी, यहाँ पे 100 हाँ। नहीं आएगी, लेट्स अज्यूम 102 आ गई, तो इसके बाद आगे जाके 2010, 2011 और 2012 में कभी भी वापस से 100 ला पाऊंगा क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं। पे +2 आना तो हर बार +2 +2 +2 +2 चलेगा ही। हाँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी 100 थी, यहाँ पे भी 100 थी, ये कैसे पॉसिबल है? जब यहाँ पे भी 100 हो, यहाँ पे भी 100 हो, यहाँ पे भी कोई चेंज ना हो रहा हो तो ही पॉसिबल है। क्लियर है? यस। अब Yes, इजी sir. करने का तरीका बताता हूँ। मैं बोलता हूँ m 25% है, आपने 100 को पहले 25% से इंक्रीज किया, कितना हो गया? 125। अब वापस से आप किस पे लाना चाहते हो? 100 पे लाना चाहते हो, बिकॉज ईयर एंड पे नो चेंज होना चाहिए। हाँ। Yes, तो sir. 125 में कितना रिड्यूस करूँ कि 100 आ जाए? 20% 20%। 20%। इसका मतलब m बड़ा होना चाहिए, n बड़ा होना चाहिए। एम होना m बड़ा होना चाहिए, तो ये गलत।
सर बट आपका रेशियो 3:2 का तो आया ही नहीं। मैं कब ला रहा था 3:2 का? तो एग्जाम्पल है, अज्यूम किए। सर पर हमेशा वही होगा ना, अगर वापस उस पे लाना है तो एम हमेशा बड़ा होना चाहिए। 100%, क्योंकि वही इंक्रीमेंट तभी आ 100 पे पाएगा। लग रहा है और डिक्रीमेंट 125 पे लग रहा है, तो 125 पे 25 का डिक्रीमेंट तो कम परसेंट होगा ना एज कम्पेयर टू 100 पे वो। हाँ सर। हाँ सर। तो हमेशा इंक्रीमेंट ज्यादा होगा, डिक्रीमेंट कम होगा हमेशा। क्लियर है? यस सर। शेल आई Yes, रिमूव sir. दिस? श्योर यस सर। सर। नेक्स्ट वन प्लीज। सर वो फेज सर खत्म हो गया ऑप्शन में तो ऐसा सेकंड होगा चालू नहीं करो। ना कि क्या नहीं होगा एक और वैल्यू हो जिसमें एम बड़ा हो। मैडम? आपका काम आंसर निकालने, हाँ सर। क्वेश्चन बनाने का नहीं है, यस सर। तो मत बनो। नेक्स्ट प्लीज। सर वो फेज खत्म हो गया, फर्स्ट और सेकंड चालू हो गया तो सेकंड 7 पे आ हो जाइए गया। प्लीज। बोलो। सर 7 सेवेंथ 7 फोर 7 फोर बोला है ना। सेवेंथ। हाँ। वो तो हो चुका मैडम, 7। बताने का है किसी को? नो नो सर। सर। नो सर हो गया। नेक्स्ट। 9। बताने का है किसी को? यस सर। यस यस सर। सर। जो इच्छा है वैल्यू ले लो। क्या लेना सर चाहते हो? एबीसी के सर 1/2। 8 to 2 आप सुनिए मेरी 1 बात। 2 3। सुनिए एक सेकंड। अब इसमें क्वेश्चन ही आता है, सर एबीसी की वैल्यू लो या एक्स वाई जेड की लो। चलो, अगर आपने एबीसी की वैल्यू ले ली तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ यस सर लेकिन करोगे क्या? आंसर तो एबीसी के टर्म्स में लाने का है भाई। तो वैल्यू अज्यूम किसकी करनी चाहिए? एक्स एक्स वाई वाई जेड। बोलो, एक्स को क्या लेना चाहते हो? 1 1 वाई को? 2 2 2 1। जेड को? 3। 3 अब वन सर वन मतलब क्यों वो नहीं ले रहा हूं, उसका 1 1 लॉजिक समझा देता हूँ, मेरे को बोलने दो। अगर आपने एक्स को और वाई को 1 1 लिया तो ये ऐसा बैठ जाएगा। ऐसा बैठा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ए से ए कट जाएगा, और +1 -1 के इक्वल हो नहीं सकता, तो आपका अजम्पशन गलत हो जाएगा। क्लियर है? यस सर इस सिचुएशन पे ना पहुंचू इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। मैंने लिया ए को 1, एक्स को 1, वाई को 2, जेड को 3। 1/2 इक्वल टू a - 1/a+1। जल्दी से कोई ए का वैल्यू निकाल के बता सकता है क्या? 3। 3 चलो, y/z इक्वल टू b - 1/b+1। कोई b का वैल्यू निकाल के बता सकता है क्या? ओके, 5। listen, I've got an urgent call, just allow me one. ओके, सॉरी फॉर द वर्ड। यस प्लीज। तो b का वैल्यू निकाल लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। 5 5 3/z/x इक्वल टू c - 1/c+1। c का वैल्यू बताएंगे कोई? -2 -2 -2 -2। जल्दी से बताइए। ab 15 15 प्लस bc -10 -10 -10 प्लस ca। -6 6 आंसर? -1 -1 -1 क्यों नहीं लगा लेते हो इतना सा दिमाग यार? नहीं हो जाता क्या इजीली? यस सर। हाँ सर हो गया।
please try to look at the question. Please try to understand where you can apply this concept of assuming the values by yourself. Trust me, you are going to save a lot of time and you are going to get many answers correct. Clear, hai? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall we go ahead? Yes, sir. Yes. Next, please. 17. बताने का है किसी को? No, sir. Anyone? Yes, sir. Yes, sir. देख लेते हैं. 3 swimmers DMF participated in a swimming pool race competition with D finishing 20 meters ahead of M. DMF रेसेस का क्वेश्चन है. टोटल लेंथ पता नहीं थी अपने को. वो 20 मीटर पहले फिनिश करता है, यानी वो ML-20 पे होगा. 34 मीटर पहले फिनिश करता है F से L-34. यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? No, sir. ये No, L sir. पे था तो 21 मीटर अहेड था L-21. यहाँ तक कोई L-21. दिक्कत है क्या? No, No. sir. ठीक है. लेंथ बताने का है. दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? Yes, sir. कर लेंगे या करके बताऊं? हो Yes, हो जाएगा जाएगा. सर. हो जाएगा सर. होगा सर. ये देखता हूं, है ना? नेक्स्ट 18. बताने का है किसी को? नो सर. No, sir. No, sir. ये सर इसका -3 आ रहा है मेरा. -3 आ रहा है हाँ तो मैडम -1 और लगा लो अपने हिसाब से. सर नहीं आ रहा. कैसे नहीं आ रहा? मैडम एक बात बताओ, इसको हाँ 3 की पावर -9/2 लिख दूंगा, आपको चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ चल जाएगा? 9/2 क्यों? मैडम 81 होता है 3 पावर 4. 4. हाँ 1/2. अच्छा 9/2. हाँ और नीचे था तो ऊपर ले जाऊंगा -9/2, चल जाएगा. हाँ 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 इसको 3 की पावर -3/2 लिख दूंगा, आपको चल जाएगा क्या? हाँ. -9/2 को आगे लाऊंगा, -3/2 को अच्छा आगे लाऊंगा ठीक है और ये सर. लॉग. नहीं मैडम सुन लीजिए, देखिए 2 से 2 कटेगा, नेगेटिव नेगेटिव, 9/3 बचेगा 9 की टेबल में. अब लाइक 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. प्लस का आगे मैडम. हाँ सर प्लस का आगे. खुश? हाँ सर. अभी बीच में सो गए थे क्या मैडम? आवाज ही लगाई, आप सुनते ही नहीं. नहीं सर मेरे को लगा कि मेरा म्यूट शायद नहीं है इसलिए सब बोल रहे, इसलिए मैंने म्यूट कर लिया था. मेरे को पता नहीं था. ओहो, इट्स ओके मैडम. सो भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, उठ जाना भी. उठ गई सर अब. मतलब सो गए. नेक्स्ट 21. बताने का है किसी को? Yes, sir. अरे क्या बकवास ये सब करते हो यार, इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आता तुमको? जवाब तो नहीं एक आता सर. चलो देख लो. A student was given the task to calculate the average of 10 marks. It was known हो that जाएगा none of... सर, हो जाएगा. अरे नहीं यार, पूछ लो, मजाक कर रहा हूँ मैं तो. आजकल अरे नहीं सर, मैं सीरियसली बोल रहा, हो जाएगा. एक बार कर लूंगा सर. चलो ठीक है, बढ़िया. और किसी को पूछने का है? बता दो सर. हाँ सर मेरे को पूछना है, बता दो. तुम लोगों को भी डांट के बोलना पड़ेगा. सही वही क्वेश्चन है जो लाइक शीट में बार बार आया था ना, जिसका आपने फॉर्मूला बताया था न्यू एवरेज का. हाँ, रिप्लेसमेंट का केस है मैडम, ये तो क्या दिक्कत है? नन, ये देखो, नन ऑफ द स्टूडेंट, ये सब बकवास है, ये तो पढ़ने वाला पॉइंट है. स्टूडेंट इंटरचेंज द 2 डिजिट नंबर, रिजल्ट एवरेज इज लेस देन 2.7. सो न्यू एवरेज हो गया a - 2.7 इक्वल टू गिवन एवरेज प्लस चेंज क्या है 10x + y - 10y - x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है 10. a से a काट दूं, हो गया सर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं. 27 इक्वल टू 9 of x - y, तो x - y आ गया 3. यही तो पूछा है इन्होंने, बस x y की जगह mn दे दिया. सर चलेगा? ये डिवाइडेड बाय 10 क्यों किया है? मैम फॉर्मूला क्या था? न्यू एवरेज इक्वल टू गिवन एवरेज प्लस चेंज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. हाँ अच्छा नंबर 10 ठीक है सर.
ठीक आगे है हाँ गोइंग अहेड नेक्स्ट 22. बताने का है किसी को Yes, sir. Yes, sir. यस सर। डांट दूंगा तो नहीं पूछोगे क्या तो फिर कल पूछ लेंगे। अभी पूछ लो रे यार कोई दिक्कत No, sir. Sir. No, sir. x and y are नॉन जीरो रियल नंबर्स मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं Yes, sir. so b square minus 4ac should be greater than equal to 0 yes or no Yes. Yes, sir. Yes, sir. b क्या है K ky square. KY. K हाँ b square minus 4 a c should be greater than equal to 0 k square y square minus कितना हो गया 36 कितना होता है 576। 16. taking y square common I'll have k square minus 576 greater than equal to 0 k square greater than equal to 576 हाँ है ना Yes, sir. k greater than equal to 24 k less than equal to minus 24 यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए नो सर। No, sir. the following is not a possible value of k k minus 24 से छोटा है minus 81 हो सकता है क्या No. No, sir. क्या No, नो sir. हो सकता है ना जो छोटी हाँ सर हो सकता तो छोटा हो माइनस सकता है 24 हाँ से छोटा ही होता है ना माइनस 81 है। तो हाँ सर हाँ हाँ छोटा हो हो जाएगा। सकता है माइनस 64 हो हो सकता है क्या जाएगा माइनस हाँ 36 हो हाँ, सकता है क्या हाँ माइनस 16 हो सकता है क्या नहीं नो सर। should be the answer सर एक सेकंड सारा आ गया बस एक चीज नहीं आया आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया था मैडम मतलब ऐसा दे रखा है x and y are नॉन जीरो रियल नंबर्स हम्म तो x की वैल्यू रियल आनी चाहिए मतलब इक्वेशन ही तो इक्वेशन का रूट ही तो x होता है सर रियल नंबर्स तो फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ आता है 0 से छोटा भी तो हो जाएगा मैडम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाया था हाँ तब बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी नेगेटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स आते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट्स आते हैं हाँ हाँ तो ये वो ओके कॉन्सेप्ट लगा है मैम समझ गई सर ओके shall we go ahead यस सर moving this सर एक सेकंड एक yes ma'am सेकंड sure no issue. स्क्रीनशॉट डन सर shall we go ahead यस सर Yes. next please सर वो थर्ड फेज स्टार्ट हो गया बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन बताने का है किसी को प्रोबेबिलिटी नहीं सर छोड़ दें अगला चलें यस सर Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज 6 बताने का है किसी को नो नो सर। सर No, नेक्स्ट sir. प्लीज 8 बताने का है किसी को यस सर क्या दे रखा है लार्जेस्ट इंटीजर n such that n plus 10 divides n cube plus 100 सर ये थ्योरम व्योरम से नहीं मतलब वैसे बता देना जुगाड़ से काय का जुगाड़ से करा दो ढंग से कराओ ठीक है जुगाड़ से ही बताऊंगे यस सर Yes, sir. थ्योरम से नहीं, तो sir, एक बार नहीं थोड़ा तो वो properly वैल्यू explain. अज्यूम करके नहीं हो सकता क्या ये मैडम इसमें कैसे वैल्यू एक काम करो बच्चों एक बार n को है ना 890 अज्यूम करके देख लो क्या सर n को 890 अज्यूम लो सर मैंने जुगाड़ से इसलिए बोला था क्योंकि आप अभी कुछ कंसेप्ट पूछोगे वो आता नहीं है नंबर सिस्टम का है ना वो ठीक है तुमको समझ में आया ना मैंने मना क्यों किया था जुगाड़ के लिए हाँ समझ गया सर समझते ही नहीं है सर कोई बात नहीं नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जब कर लेंगे अरे नहीं बता रहा हूँ किसी को आता है क्या नो सर आता तो पेपर में ही गया था चलो देखते हैं देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये n क्यूब प्लस 100 की जगह n क्यूब प्लस 1000 होता तो a क्यूब प्लस b क्यूब लग जाता है नहीं लग जाता
लग जाता। Yes, sir. लग जाता? Yes, sir. तो कितना कम है? 10 900. 900 सॉरी। तो n प्लस 10 को 900 ले लूं? क्या सर? कुछ नहीं। इसका वैल्यू क्या होगा? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी। माइनस ए। सर वो 10n स्क्वायर होना चाहिए ना? क्यों माइनस ए बी। अच्छा मैडम? a 10 है, b n है, ठीक है सर, ठीक। ठीक है। So basic concept is that if it would have been this would have always been divisible, yes or no? तो अबे हाँ या ना बोलो। हाँ Yes, sir. सर, हाँ। लेकिन अपने पास, अच्छा इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख दूं क्या? कोई दिक्कत ना हो तो? नहीं नो सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। इसको इंटीग्रल बनाने के लिए n को मैक्सिमम कितना पुट कर सकते हो? 80 80 नहीं तो और 80 क्यों? 890 890 हाँ 0। इसको मैक्सिमम n को कितना पुट कर सकते हो? यार एक बात 890 बताओ, आपको वैल्यू इंटीग्रल चाहिए तो न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर हो सकता है क्या? नहीं नो सर। नहीं हो सकता ना। इफ यू हैव समथिंग लाइक 2/3 इंटीग्रल हो सकता है कभी? नहीं। तो मैक्सिमम n को 890 पुट कर सकता हूँ। यस आपने बोला था ये परफेक्टली डिविजिबल है, मतलब ये इंटीग्रल है, हाँ या ना? अगर ये इंटीग्रल है और 890 पे ये भी इंटीग्रल है, तो एक इंटीग्रल वैल्यू को दूसरी इंटीग्रल वैल्यू से ऐड करके ही इंटीजर लाया जा सकता है। यस सर मतलब अगर 8 n को 890 पुट किया तो ये दोनों इंटीजर हो जाएंगे। यस सर आपको इसको इंटीजर बनाना था तो n को मैक्सिमम 890 पुट कर दूं। यस सर। क्लियर है? यस सर। समझ में आया? चले आगे। मतलब पूरा आ गया, बस एक स्टेप जो आपने स्टार्टिंग में इसको ब्रेक किया वो कैसे किया? x³ + 1000 इज इक्वल्स मैम टू। इसको n क्यूब प्लस 10 का क्यूब लिख दूं। हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a + b a² + b² - ab। देख लीजिए मैम आगे। ओके, गॉट इट सर। चलो शैल आई रिमूव दिस? यस सर सर वन सेकेंड। ओके मैम, ठीक है। डन सर। नेक्स्ट प्लीज। 10 10 बताने का है किसी को? नो सर। सर यस सर यस हाँ या सर। ना? हाँ या ना? बता दो। यस सर यस सर बताना है? बता देख लेते हैं। लेट k be a positive integer such that k plus say 4 is divisible by 7. Smallest positive integer n such that k plus 2 greater than 2, sorry, such that k plus 2n is divisible by 7. यार एक बात बताओ, k plus 4 is divisible by 7, हाँ या ना? हाँ हाँ k को मिनिमम कितना रख सकता हूँ? 3। 3 रख दूं? हाँ यहाँ तक किसी को दिक्कत आई? नो सर। नो सर k plus 2n यानी 3 plus 2n 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर इसको इक्वल टू 7 रखा तो n कितना आ गया? 2। लेकिन ग्रेटर देन 2 बोला है तो ये वैल्यू तो ले नहीं सकता हूँ। यस सर। n को 14 रखा तो n कितना आ गया? 7 का नेक्स्ट मल्टीपल।
सॉरी, सर फिर n 5.5 आएगा, पॉइंट्स में नहीं चलेगा ना? डेसिमल में आ नहीं सकता। n को 14 के बाद 21 रखा तो k, सॉरी k को 21 रखा तो n कितना आ गया? 9 9 दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू जहाँ पे इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर देगा। ओके सर। चले आगे। यस सर। Shall I remove this? यस yes sir Going ahead. Next please. Sorry, question 12 12th बताने का किसी को? नो सर। Anyone? नो सर। नो No, sir. ठीक है। अभी एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जो शायद अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो तो आप लोग काम में ले लेंगे, बाकी फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो पूरा बताऊंगा। फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है कि कभी भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉप करोगे तो वो कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। एक से ज्यादा कर रहा है मतलब वो फंक्शन ही नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन। यस डिटेल एक्सप्लेनेशन तब दूंगा जब फंक्शन पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता। क्लियर है? यस सर। सर पर ये एक से ज्यादा पॉइंट पे इस वाले डायग्राम में तो नहीं कट कर रहा ना एक्स एक्सिस पे? मैडम कर तो रहा है। सर वो तो आपने ड्रॉ करी ना, बट तो मैडम मैं ही तो ड्रॉ करूंगा। सर अरे मैम, भूल ये होता है कि अगर y एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन आप खुद ड्रॉ करते हो हाँ तो वो गिवन कर्व को 2 पॉइंट या उससे ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करना चाहिए, एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। अच्छा ओके सर। चले आगे। हाँ। नेक्स्ट 15। 15 हाँ। बताना है किसी को? नो सर। एनीवन? नो सर। नो सर। नेक्स्ट। बस खत्म हो गए। सारे? हाँ हाँ। चलो बढ़िया है। So finally with this we are done with the discussion of mock cat 4 quant section.